Hi everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best possible content on this channel. And I hope you are following all the videos क्योंकि PYQs हैं, they are going to be very important for your pre-boards and for your board exam because same type of questions will be asked in your board exams in 2025. So in this series we are covering all the PYQs which CBSE asked in 2024 board exam, whether it was main board exam or compartment board exam. So we have covered each and every PYQ. So today we are going to do differential equations, MCQs and case studies. So let us start with our first question. Differential equation dy by dx is equal to fxy will not be a homogeneous differential equation if fxy is, तो 4 options are given. तो homogeneous differential equation के लिए क्या होता है कि degree of each and every term is same. For homogeneous differential equation, degree of each and every term is same. Now it is not possible, यहाँ पे we can see के x square की degree is 2, y square की degree is 2 and xy में degree is 1 plus 1 which is again 2. So in the third option, degree of each and every term is same, so this will be a homogeneous differential equation. In case of y upon x, degree of y is 1, degree of x is also 1, so degree being same, this is also a differential homogeneous equation. Now in case of trigonometry, how will we see whether degree of each and every term is same? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि homogeneous differential equation के लिए इसको fxy ले लेंगे. fxy जो होगा cos x minus sin y upon x. Now we will substitute each and every x with lambda x and substitute y by lambda y. तो ये हो जाएगा cos lambda x minus sin lambda y upon lambda x. Lambda and lambda gets cancelled in case of sin. Sin के angle में there is no lambda. और यहाँ पे we cannot take out lambda because this has become the angle of cos. तो इस cannot be written in the form of lambda raised to power n fxy. So this is not a homogeneous differential equation. और question में हमें यही पूछा हुआ है कि which is not a homogeneous differential equation. तो this one will not be a homogeneous differential equation. Option A. अगर हम D ऑप्शन का देखें तो जब हम x एंड y को सब्सटीट्यूट करते हैं लैम्डा x एंड लैम्डा y से तो लैम्डा एंड लैम्डा गेट्स कैंसल्ड. सो दिस इज ऑब्वियसली अ होमोजेनियस differential equation. Now differential equations, whenever we solve differential equations, they are of 3 types. One is homogeneous differential equation. तो homogeneous differential equation में what we check that degree of each and every term should be the same. Then we have variable separable homogeneous equation. इसमें we can easily separate the variables of x and y. We can take all x terms to one side and y terms to one side. तो वेरिएबल सेपरेट करना उसमें ईजी हो जाता है. एंड इन देयर इज थर्ड फॉर्म विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वी राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म लाइक dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू या dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेकेंड क्वेश्चन. डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब देखो डिग्री जो होता है, डिग्री एंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है. सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना होता है ऑर्डर. जब हम हाईएस्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म होती है उसी की डिग्री देखनी होती है, किसी और टर्म में डिग्री नहीं देखनी होती. तो हम क्या करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के लिए सबसे पहले वी आइडेंटिफाई द टर्म हैविंग हाईएस्ट ऑर्डर. हाईएस्ट ऑर्डर जैसे dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स का जो ऑर्डर होता है दैट इज़ 1. अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑब्वियसली इट्स ऑर्डर विल बी 2. अगर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो इट्स ऑर्डर विल बी 3. तो बेसिकली हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं वो टर्म जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है और जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म होती है ना उसी की जो पावर होएगी दैट विल बी द डिग्री. बट डिग्री के केस में देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन. अगर एक पर्टिकुलर फॉर्म में इफ इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि सपोजिंग साइन dy बाई डी एक्स आ जाए, मतलब ज़रूरी नहीं साइन,
cos dy by dx, tan dy by dx, इस टाइप से ट्रिगो के साथ ट्रिगो के एंगल में कोई भी dy by dx आ सकता है, या e रेज टू पावर dy by dx या log dy by dx आ जाए, तो उस केस में दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, और उस केस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे y डबल डैश है, तो y डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इज 2, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा ऑर्डर विल बी 2, तो डिग्री जो होगी, अच्छा इसमें डिग्री ही पूछी हुई है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि देखो इस फॉर्म में टर्म आ गई ना साइन y डैश मतलब साइन dy by dx, सो दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, ये रीज़न होगा, तो उसकी वजह से इसकी डिग्री जो होगी दैट इज नॉट डिफाइंड, तो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, डिग्री पहले बोला है ऑर्डर बाद में, तो हमें पहले ऑर्डर देखना होता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, पर यहाँ पे देखो फिर से log y डैश आ गया ना, log y डैश का मतलब है दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, एंड दिस इज नॉर्मल x रेज़ टू पावर 5 विच इज अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो 2 होगा, हाईएस्ट ऑर्डर यही है, बट डिग्री जो होगी दैट इज नॉट डिफाइंड, बट क्वेश्चन में हमें पहले डिग्री पूछा है फिर ऑर्डर पूछा है, तो नॉट डिफाइंड कॉमा 2 इज द आंसर विच इज ऑप्शन बी। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे जब भी इसके सोल्यूशंस होते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो जनरल सोल्यूशंस होते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है y0 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स y इज 1 व्हेन x इज 0, दैट मीन्स इसमें हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन हम कैसे करते हैं कि फर्स्ट वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी गेट द जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वी गेट वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज c, तो उसके बाद x एंड y की जो वैल्यूज गिवन होती है वो पुट करके वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो c की वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं देन वी गेट द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी होगा तो वन एंड ओनली वन सोल्यूशन होगा, देयर विल बी नो मोर सोल्यूशन अदर देन वन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो इट विल बी हैविंग ओनली वन सोल्यूशन। So next question, x log x dy by dx plus y is equal to 2 log x is an example of variable separable differential equation है, homogeneous है, first order linear differential equation या differential equation whose degree is not defined, degree तो defined है। तो अगर हम इस differential equation को लें x log x dy by dx plus y is equal to 2 log x, सबसे पहले हमें इसको dy by dx फॉर्म में लाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि dy by dx का जो कोफिशिएंट होगा दैट शुड बी इक्वल टू 1, सो वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय x log x। x log x से जब डिवाइड करेंगे तो dy by dx प्लस y अपॉन x log x हो जाएगा 2 log x अपॉन x log x। अब ये हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई, दिस इज ऑब्वियसली नॉट वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि y एंड x की टर्म्स अलग अलग नहीं हो सकती, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है। तो जब हम इसको देखेंगे dy by dx इज प्लस y अपॉन x log x, ऑब्वियसली जब हम x को लैम्डा x या y को लैम्डा y पुट करेंगे तो log लैम्डा x को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, सो दिस इज़ नॉट होमोजीनियस, तो ये बन गई फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम कंपेयर करें इस फॉर्म से dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p y का कॉफिशिएंट है, तो p इस केस में 1 अपॉन x log x है एंड q जो है वो 2 अपॉन x है, तो p एंड q दे शुड बी कॉन्स्टेंट्स और दे शुड बी इन टर्म्स ऑफ x, तो विच इज ट्रू, सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। General solution of differential equation is
एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज 0, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम वाई डी एक्स को उस साइड ले जाएंगे. नाउ वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स. डी वाई के नीचे वाई ले आओ और माइनस को उधर ही रखो डी एक्स अपॉन एक्स, एंड वी इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log x. अगर सारी टर्म्स log में आ रही हैं तो c को भी log की टर्म्स में लिखो प्लस log c. When we take log x to other side, तो log m plus log n becomes log mn. So this becomes log xy is equal to log c. Now we take anti-log on both the sides so that log gets removed. तो xy की वैल्यू आएगी c, which is option A. So let us start with our next question. Integrating factor of this differential equation x plus 2y square dy by dx is equal to y is, तो इसमें हम देखते हैं, मतलब ऑब्वियसली इसको उस साइड ले जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. मतलब अगर y के नीचे हम x प्लस 2y स्क्वायर लिखें तो वी विल नॉट बी एबल टू स्प्लिट इट विद द डिनोमिनेटर. तो हम क्या करेंगे, dx बाई dy बाई dx को उस साइड ले जाते हैं तो वो dx बाई dy हो जाएगा. तो ये dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू फॉर्म वाली है इक्वेशन. तो अब हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को y से, और मैं इसको इस साइड लिख रही हूँ dx बाई dy इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y. तो ये y एंड y कैंसिल हो गया, तो dx बाई dy माइनस 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू 2y हो जाएगा. So this is of the form dx by dy plus px is equal to q. p की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन y, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e इंटीग्रल p dy होता है. तो e माइनस 1 अपॉन y dy e रेज टू पावर माइनस log y. तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर log y रेज टू पावर माइनस 1. क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा बेस, तो e होगा e log e जो होता है ये पार्ट 1 हो जाता है, तो इसका आंसर ए आएगा. तो यहाँ पे ए की जगह है y रेज टू पावर माइनस 1. सो इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन y, विच इज ऑप्शन डी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of arbitrary constants in the particular solution of differential equation. ये differential equation को जब हम solve करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि जब whenever we solve a differential equation we get the answer in terms of c, which is the general solution of differential equation. But particular solution निकालने के लिए what we do is we put the values of x and y and find the value of c. तो इस केस में x 0 गिवन है, y भी 0 गिवन है, तो आंसर को सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे और उस जनरल सोल्यूशन में c की वैल्यू पुट कर देंगे. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आते हैं जब भी हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं, तो देयर इज नो कांस्टेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आंसर विल बी 0. सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यू नीड नॉट सॉल्व दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई dx प्लस 2 अपॉन x y is equal to 0. So this is again of the form dy by dx plus py is equal to q. q is 0 in this case और p की वैल्यू होगी 2 upon x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e इंटीग्रल p dx. तो e 2 तो बाहर ही ले लो, 1 upon x dx which becomes e2 log x. अब इस केस में क्या करेंगे, log m रेज टू पावर n, n log m है, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी log x स्क्वायर. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था e और log है, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, तो x स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो दिस इज ऑप्शन बी. So next question, general solution of this differential equation. This is obviously variable separable differential equation. ex plus y can be written as e raised to power x into e raised to power y. क्योंकि बेसिस सेम होती है ना, पावर्स ऐड हो जाती हैं, सो वी कैन राइट इट एज x प्लस वाई. तो x प्लस वाई को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं. नाउ वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स. तो dy यहाँ पे हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई, और ये ex dx. e रेज टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रल e रेज टू पावर माइनस वाई, क्योंकि y का कॉफिशिएंट -1 है तो -1 भी नीचे आएगा, बट नीचे -1 लिखें यहाँ लिखें एक ही बात है, ex प्लस c. तो इस केस में e रेज टू पावर माइनस एक्स
We can also write c to this side to get the proper solution. So instead of this we can write c to this side, तो c बन जाएगा ex plus e raised to power minus y, which is the option A. ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वी डिसाइडेड कि हाउ टू प्लेस द c. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर जो होता है वो तो हाईएस्ट ऑर्डर होता है. अगर इस क्वेश्चन में देखो कि साइन के साथ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बट ऑर्डर जो है ऑर्डर तो डिफाइंड होता है. तो ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर, जहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है 4, तो इट्स आंसर इज 4. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अगर इसमें देखो ये जो टर्म है ये ऑर्डर 3 है, ये टर्म का ऑर्डर 1 है, डिग्री जो है इसका पावर 5 है, वो नहीं देखना, डी वाई बाई डी एक्स देखना है, ऑर्डर इज 1. अब 4 लॉग ऐसे आ रही है टर्म, डी रेज टू पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स 4, मतलब ऑर्डर 4 है, बट यहाँ पे अगर ध्यान दो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड. बट वो उसी केस में होता है जब लॉग डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में आता है, या ई रेस्ट पावर डी वाई बाई डी एक्स, या ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ साइन डी वाई बाई डी एक्स. बट ऑर्डर के केस में ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डर डिफाइंड होता है. तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 4 है, तो आंसर इज 4. नेक्स्ट ऑप्शन है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू y माइनस एक्स वाई. तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ से y कॉमन ले लो. अच्छा, ये फैक्टराइज हो गया, तो 1 माइनस एक्स पूरे से कॉमन लेंगे, अंदर आएगा 1 प्लस वाई. नाउ वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स. डी वाई के नीचे 1 प्लस वाई ले लो और 1 माइनस एक्स के साथ डी एक्स ले लो और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो. इसका इंटीग्रल होगा लॉग मॉड 1 प्लस वाई एंड 1 का होगा x और x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, विच इज ऑप्शन ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज. डिग्री हम कैसे देखते हैं? डिग्री के लिए ना सबसे पहले ऑर्डर देखना पड़ता है. हाईएस्ट ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर इज 2. जो ऑर्डर 2 होता है ना उसी की पावर को डिग्री देखते हैं. यहाँ पे ऑर्डर 1 है, पावर 4 है, बट डिग्री 4 नहीं. जैसे पॉलिनॉमियल्स में हम देखते हैं ना हाईएस्ट पावर, कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर 5, तो इसको डिग्री ले लेते हैं. बट डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे नहीं होता. डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द टर्म हैविंग हाईएस्ट ऑर्डर. जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म होती है विच इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इन दिस केस ऑर्डर 2, तो उसी की पावर को हम देखते हैं, वो होती है डिग्री. तो इस केस में डिग्री जो होगी वो होगी 3. तो आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज. ये देखो ये सारी x वाली टर्म्स है, ये डायरेक्टली इस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. क्यू ये पूरा है 2x प्लस एक्स स्क्वायर टैन एक्स एंड p इज टैन एक्स. तो p इज टैन एक्स इन दिस केस. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e इंटीग्रल p dx, मतलब ये e इंटीग्रल टैन एक्स dx. टैन एक्स का इंटीग्रल होता है log sec x. अगर नहीं याद रहता फॉर्मूला तो टैन को साइन अपॉन कॉज लिख के कॉज एक्स को t माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा log sec x. अब e के ऊपर डायरेक्टली log है तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर इज ओनली sec x. तो ऑप्शन सी. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज. तो इसमें देखो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का जो कॉफिशेंट है वो हटाना पड़ेगा, तो हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से. फर्स्ट टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. तो p है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e इंटीग्रल p dx. तो e इंटीग्रल x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज सब्सटीट्यूशन मेथड.
पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो माइनस 2x dx हो जाएगा dt, बट यहाँ पे हमारे पास x dx है विच बिकम्स माइनस हाफ dt, तो माइनस हाफ dt अपॉन t विच इज e रेज टू पावर माइनस हाफ log t। तो इसका माइनस हाफ हम ऊपर ले जाते हैं तभी हमारा e हटेगा, t रेज टू पावर माइनस हाफ, तो इसका इंटीग्रल होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा t रेज टू पावर माइनस हाफ। t है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ। अगर हम इसको लिखें 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, रेज टू हाफ का मतलब होता है रूट, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ऑप्शन डी। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The order and degree of this differential equation are respectively, यहाँ पे होल क्यूब है ना, तो हम थोड़ा सा होल क्यूब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट अगर हम देखें इवन अगर हम होल क्यूब को सॉल्व करें तो ये a क्यूब आएगा, ये b क्यूब आएगा, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर का क्यूब विच इज 6 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b, तो भी dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा, तो भी dy बाई डी एक्स ही रहेगा विच इज फर्स्ट ऑर्डर, बट यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी सेकेंड ऑर्डर टर्म, तो ऑर्डर विल बी 2 और डिग्री हम उसी की देखते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसकी पावर है 1, तो डिग्री इज 1। तो ध्यान से देख लिया करो, क्वेश्चन में ऑर्डर डिग्री पूछा है, डिग्री ऑर्डर तो नहीं पूछा हुआ, तो ऑर्डर डिग्री होगा 2, 1 विच इज ऑप्शन सी। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो सबसे पहले क्योंकि वी हैव x एज कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स, सो वी विल डिवाइड ईच टर्म बाय x, तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू x4 माइनस 3x है ना, तो x क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q, तो p की वैल्यू होगी, p इज कोफिशिएंट ऑफ y, सो इट्स वैल्यू इज माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e इंटीग्रल p डी एक्स, e माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो e रेज टू पावर माइनस log x हो जाएगा, तो इसको पावर में ले जाते हैं, e log x रेज टू पावर माइनस 1, दिस बिकम्स x रेज टू पावर माइनस 1 विच इज 1 अपॉन x। अच्छा, x रेज टू पावर माइनस 1 इज गिवन, तो ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्लियरली दिख रहा है कि वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स, वी कैन टेक log y टू अदर साइड, तो log y dy इज इक्वल टू dx एंड इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए हमें बाय पार्ट्स आइलेट का रूल यूज़ करना पड़ेगा, तो आइलेट के रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन log होता है, आइलेट में I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगो, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक, A स्टैंड फॉर अलजेब्राइक। Now this is logarithmic and this is algebraic, तो L comes before A in the rule of isolate, तो log y will be first function and this is second function। और बाय पार्ट्स में हम कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज लेते हैं इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विल बी y, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 का इंटीग्रल विल बी y माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज y इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस c लिख दो, तो y log y, और यहाँ पे y एंड y हो गया कैंसिल, dy का इंटीग्रल इज y इज इक्वल टू x प्लस c। तो देखें कोई ऑप्शन आ रहा है y log y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस c, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने होते हैं, जैसे वी हैव डिस्कस्ड इन द few questions in the beginning कि whenever there is a particular solution, so there is no arbitrary constant in that case, but general solution के केस में एक c आता है, but कितने c आएंगे, अगर इसका ऑर्डर 1 हो, जैसे dy बाई डी एक्स हो, तो हम इसको एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे, तो वी विल गेट ओनली 1c, बट अगर सपोजिंग ऑर्डर 2 होता, तो हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर 2 होता तो हमें 2 कॉन्स्टेंट्स मिलते,
और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होता है तो 3 कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं, अगर 4 ऑर्डर होता है तो 4 कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर इज 1, तो देयर विल बी ओनली 1 कांस्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a particular solution of the differential equation when x is equal to 1 and y is equal to 1 is, तो x dy by dx प्लस y 0 है ना, तो y को उस साइड ले जाओ माइनस वाई। नाउ वी कैन ईजिली सेपरेट द वेरिएबल्स dy अपॉन y। जब भी इंटरचेंज किया करो टर्म्स, माइनस साइन यहाँ पे है तो इसको यहीं पे रखा करो, इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x एंड इंटीग्रेट करेंगे log y इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। साथ में सारी टर्म्स लॉग में आ रही है ना, तो c को भी लॉग में ले लेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो log y प्लस लॉग एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग c। log m प्लस लॉग n इज log mn, तो log xy इज इक्वल टू log c, तो दिस बिकम्स xy इज इक्वल टू c। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है क्योंकि x इज 1 y इज 1, तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर होगा xy इज इक्वल टू 1। बट xy इज इक्वल टू 1 ये आ रहा है ऑप्शन, ये तो y इज इक्वल टू x आ रहा है, y इज इक्वल टू ई एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स नहीं आ रहा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्योंकि x को उस साइड ले जाओ तो थोड़ा बहुत हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है। सो दिस इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, dy बाई डी एक्स का कॉफिशेंट 1 रखना पड़ता है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऑलरेडी एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिस इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और p जो होगा वो होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e इंटीग्रल p dx, तो e इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t पुट करेंगे तो 2x dx इज dt, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिकम्स e इंटीग्रल dt अपॉन t विच इज e log t। अब e के ऊपर डायरेक्टली log पावर आ गई और यहाँ पे भी बेस e होती है तो ये 1 हो जाता है, तो ये सिर्फ t बचेगा, तो t होगा विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ऑर्डर जो हम देखते हैं वो हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं, dy बाई डी एक्स का ऑर्डर 1 है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का ऑर्डर 2 है, तो सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं डेरिवेटिव्स की, तो इसका ऑर्डर होगा 2। अगर इस केस में डिग्री देखनी हो देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो इन दैट केस डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो अब हमारे सारे एमसीक्यू जितने भी लास्ट ईयर बोर्ड्स में पूछे गए थे वो सारे खत्म हो गए हैं, बट एक ही केस स्टडी लास्ट ईयर पूछी गई डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्योंकि मोस्टली जो केस स्टडीज़ होती हैं वो एओडी चैप्टर में से या फिर प्रोबेबिलिटी में से, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स इस टाइप के चैप्टर से पूछी जाती हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही केस स्टडी पूछी गई थी, तो ये है बैक्टीरिया सैंपल ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज ऑब्जर्व टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। Using exponential growth model, rate of growth of this sample of bacteria is calculated. Differential equation representing the growth of bacteria is given by dp by dt is equal to kp. P is the population of bacteria at any time t. तो यहाँ पे dp by dt given है, तो dp by dt था kp और t जो है वो टाइम है, P जो है कैपिटल P पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम। इसमें 2 ही ऑप्शंस हैं A एंड B, दैट मीन्स दोनों 2-2 मार्क्स के होंगे क्योंकि केस स्टडी होती है 4 मार्क्स की। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऑब्टेन द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक्सप्रेस इट एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ t इन फॉर्म्स ऑफ t देना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, dp अपॉन पी इज इक्वल टू के dt हो जाएगा, और दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा log p और यहाँ पे k t प्लस c हो जाएगा। तो अगर हमें इन टर्म्स ऑफ
टी फाइंड आउट करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टी बोला हुआ है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है स्मॉल ई की टर्म्स में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log p, यहाँ पे हम इसको log e रेज टू पावर k t प्लस c लिख सकते हैं, क्योंकि log e की वैल्यू होती है 1, log m रेज टू पावर n होता है ना, वो पावर आगे आ जाती है, तो log e बच जाएगा। log e वैसे भी 1 होता है when the base is e, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है बेस e होगा। नाउ वी टेक एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो p की वैल्यू होगी e रेज टू पावर k t प्लस c। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज e रेज टू पावर k t इंटू e रेज टू पावर c, या फिर ऐसे दे सकते हैं आंसर, बट आंसर लॉग की टर्म्स में नहीं देना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है। तो ये वाला आंसर है। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। तो बी ऑप्शन के लिए है इफ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज 1000 एट t इज इक्वल टू 0, मतलब जब p 1000 होगा टाइम 0 होगा, 2000 एट t इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो उसको सॉल्व करने के लिए ना इसमें मुश्किल होगा सॉल्व करना, ये वाला पार्ट लेते हैं। log p जो है वो आया था k t प्लस c, जब p होगा तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, when t इज 0 तो p होगा 1000, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 1000 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो ये c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू को अब हम इसमें पुट कर देंगे, या फिर ऐसे करते हैं log 1000 c आ गया। अब फिर से पुट करते हैं 2000 एट t इज इक्वल टू 1, पॉपुलेशन इज 2000 एट t इज इक्वल टू 1, जब p 2000 होगा तो t विल बी 1, तो यहाँ पे log p जो है log p k t, अच्छा इसको लिख ही लेते हैं, c को log 1000 लिख लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब p की जगह 1000 होगा, log 2000 इज इक्वल टू k इंटू 1 प्लस log 1000, तो ये हो जाएगा log 2000 माइनस log 1000 इज इक्वल टू k। log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो log 2000 अपॉन 1000 हो जाएगा k, तो ये कट गया log 2 बन गया, तो k की वैल्यू आ गई log 2। तो हमें इसमें k की ही वैल्यू निकालनी थी ऑप्शन 2 में, तो आंसर इज log 2। तो ये हमारे 2024 के जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के MCQ और केस स्टडी पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में, वो सारे कवर हो गए हैं। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर, इसमें से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट होते हैं। अगर बेसिक सारे क्लियर हो तो उसी से डिफरेंशियल इक्वेशंस अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर कोई NCERT का डिफरेंशियल इक्वेशन का रिविजन करना चाहता है तो मेरी NCERT के सोल्यूशंस की प्लेलिस्ट में सारे जो हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइजेस सॉल्व की हुई हैं, तो उसमें देख के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, गिव इट अ लाइक, एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।